تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ جونپور شہر میں سناروں کا ایک ہندو خاندان آباد تھا۔ خاندان کا سربراہ سندر لال نامی ایک بڑا زیرک، تجربہ کار اور جہاں دیدہ شخص تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ بیچ شہر کے چوراہے پر سونے چاندی کی ایک بہت بڑی دکان بھی اس کی تھی۔ کاروبار اتنے عروج پر تھا کہ رات دن دھن برستا تھا، لیکن ساری دولت و خوشحالی کے باوجود سندر لال کی دنیا تاریک تھی۔ وہ اکثر اداس اور ملول رہا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک دولت مند گھرانے کی حسین و جمیل عورت تھی۔ اس کے رخ و عارض اور قد و قامت کی زیبائی ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ سندر لال جب بہت پریشان نظر آتا تو وہ دل موہ لینے والی آواز سے تسلی دیتی، ناحق آپ اپنا خون جلاتے ہیں۔ اولاد قدرت کا ایک انمول عطیہ ہے، وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ جس دن مالک کی کرپا ہو جائے گی، آپ کے نام کا چراغ جل اٹھے گا۔ وقت کا انتظار کیجیے، سنسار کا پالن ہار اپنی چوکھٹ سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک نہ ایک دن ہماری آرزوؤں کی کلی کھل کر رہے گی۔ حسین و دلکش بیوی کی باتوں سے شبنم کی ٹھنڈی بوند ٹپکتی اور تھوڑی دیر کے لیے دل کی آگ بجھ جاتی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد دھواں اٹھنے لگتا اور پھر سلگنے کی کیفیت چہرے سے نمایاں ہو جاتی۔ بیوی کا حال بھی اپنے شوہر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اس کی مامتا کا سوکھا ہوا چشمہ، اس کی آغوش کی ویران محفل اور اس کی راتوں کی اداس تنہائی اندر ہی اندر اسے تڑپاتی رہتی تھی۔ چونکہ فطرتاً وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما واقع ہوئی تھی، اس لیے اس کے دل کی بے قراریوں کا اظہار نہیں ہو پاتا تھا۔ جو بھی عورت کی سرشت بہت زیادہ غم فراموش اور شکیب پرور ہوتی ہے، ویسے اپنی غم نصیبی پر سلگتی وہ بھی رہتی تھی، لیکن آنکھوں کے چلمن سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ محرم کا پرسوز موسم تھا۔ بھیگی ہوئی پلکوں کے سائے میں ہر طرف شہیدان وفا کی یاد منائی جا رہی تھی۔ آہو گرہ کے پھیلے ہوئے اضطراب سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ لرزہ خیز واقعہ کل ہی رونما ہو۔ سندر لال سنار کی دیوار سے بالکل لگی ہوئی دیوار ایک خوش عقیدہ مسلمان کی تھی۔ اس کا نام سید شریف تھا۔ وہ ان اعتدال پسند لوگوں میں سے تھا جو شہیدوں کی روحانی توانائی پر محسوس قوتوں کی طرح یقین رکھتے تھے، لیکن عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے شریعت کی مقرر کردہ حدود سے قدم باہر نہیں نکالتے۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل منعقد کیا کرتے تھے، جس میں شہر کے سارے معززین اور عاشقان اہل بیت انتہائی جذبہ عقیدت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ مجلس کے اختتام پر شہدائے کربلا کی ارواح طیبات کو شربت وغیرہ کا ایصال ثواب کیا جاتا تھا، جسے تبرک کے طور پر حاضرین مجلس میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے ہر سال کا معمول تھا، لیکن آج جس واقعہ کی سارے شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی عام روایات سے بالکل مختلف واقعہ تھا۔ آج صبح ہی سے سید شریف کے دروازے پر شہر کے بے شمار فقراء و مساکین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ ان پر بے دریغ پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ صاحب خانہ نے آج اپنے 3 مہینے کے شیر خوار بچے کا پیسوں کے برابر وزن کیا ہے۔ وہی پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ہمسائیگی کے رشتے سے سنار کی بیوی اکثر سید شریف کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ آج اس کے دروازے پر سارا دن انسانوں کا ہجوم دیکھ کر تفتیش کی غرض سے شام کو اس کے گھر آئی اور سید شریف کی بیوی سے دریافت کیا، کیوں بہن، آج تمہارے گھر پر کیا تھا؟ دن بھر فقیروں کا تانتا بندھا رہا، ابھی شام کو بھیڑ کم ہوئی ہے تو خیریت دریافت کرنے آ گئی ہوں۔ شریف کی بیوی نے جواب دیا، یہ بھی خوب پوچھنے کی بات ہے۔ آج محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ ساری دنیا کے مسلمان آج کے دن نواسہ رسول فرزند بطول سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह पाक को खराज अकीदत पेश करते हैं। सुनार की बीवी ने मुदाखलत करते हुए कहा, वो तो मैं भी जानती हूँ कि आज गमी का दिन है। आज सारे मुसलमान करबला के पाक शहीदों की याद मनाते हैं, लेकिन दरअसल मालूम ये करना चाहती थी कि आज तुमने अपने नन्हे को पैसों में वज़न करके खैरात तकसीम की है। क्या मुहर्रम की मजहबी रसूमात में ये भी शामिल है? सैयद शरीफ की बीवी ने गलतफहमी दूर करने के अंदाज में कहा, मुहर्रम की रसूमात में ये चीज़ शामिल नहीं है। वैसे खबर सही मिली है तुम्हें, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दर्द अंगेज़ है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। सुनार की बीवी इस पर जवाब पर चौंक गई। उसने दबी ज़बान से झिझकते हुए कहा, सही है कि मैं हिंदू धर्म की मानने वाली हूँ, लेकिन किसी वाक़या के समझने का ताल्लुक़ धर्म से नहीं। हकीकत की कहानी कोई भी समझ सकता है। ये उज़र बयान करके तुमने और भी मुश्ताक बना दिया। अब तो ये कहानी मैं सुनकर ही उठूँगी। उसके जुनून अंगेज़ इसरार पर शरीफ की बीवी मजबूर हो गई और संभल कर बैठते हुए अपनी कहानी का आगाज़ किया। अपने धर्म के मुताबिक हम लोग शहीदों को जिंदा व जावेद समझते हैं। आज उन्हीं शहीदों के सबसे बड़े सरदार की शहादत का दिन था। वो हमारे पाक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाडले नवासे हैं। कहते हैं कि उनकी दुलारी बेटी हज़रत बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नूर के बरसते हुए बादल में सुबह शाम अपने लाल को नहलाया करती थी। ये बात भी ऊपर से हमें पहुंची है कि रहमतों के जिस आबशार से उन राज दुलारों ने दूध पिया है, उसका सौता दरियाए कुदस से जा मिलता है। हमारी किताबों में लिखा है कि हमारे सरकार के नवासे को शहादत के बाद बहुत बड़ा दर्जा मिला है। अब वो करबला के राज सिंहासन से दोनों जग पर हुकूमत करते हैं। खुदा की बात पर उन्होंने अपना सर कटाया, इसलिए अब उनकी बात कभी रद्द नहीं होती। हमारे समाज में ऐसे बहुत से जिंदा वाक़यात मौजूद हैं कि उनके चाहने वाले दुखियारों ने जब अपने दिल के सोज के साथ उन्हें पुकारा तो वो गैबी रास्ते से पलक झपकते आ गए। उन्हें खुदा ने देखने और सुनने की अथाह कुव्वत अता फरमाई है। दूर क्यों जाओ, एक ताज़ा मिसाल हमारी ही मौजूद है। तुम्हें मालूम है कि हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, धन दौलत, नौकर चाकर, ज़मीन और आसाइशो इज़्ज़त की कोई कमी नहीं। लेकिन घर में जब तक कोई चिराग जलाने वाला ना हो, सारा धन बेकार है। हम दोनों मियाँ बीवी हमेशा अपनी तकदीर का मातम करते रहे हैं। सारे इलाके में कोई ऐसा पीर, फ़कीर, वीद, हकीम नहीं जिसके पास हम अपनी फरियाद लेकर ना गए हों, लेकिन कहीं हमारी मुराद बर ना आई। जब हम हर तरफ से मायूस हो गए तो गुज़श्ता साल इसी मुहर्रम के मौका पर, जबकि हम सब रोज़ा से थे, शाम को अफ्तार के वक़्त एक अजीब वाक़या पेश आया। अचानक बैठे बिठाए मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवां हो गए। रह रह कर ये ख्याल नश्तर की तरह दिल में चुभने लगा कि काश आज हमारी गोद में बच्चे होते तो वो भी अफ्तार पर हमारे हमरा बैठते। हर चंद इस ख्याल को दिल से निकालना चाहती थी, लेकिन आतिशे सहरा की तरह दम के दम में ये आग सारे जिस्म के अंदर फैल गई। बाल बाल से चिंगारी फूटने लगी। साला साल से ज़ब्तो शकीब का थमा हुआ सागर आज उमड़ पड़ा था। इसी इज़्तिराब अंगेज़ हिजान के आलम में बेसाख्ता मुँह से एक चीख निकल पड़ी, या हुसैन, मायूसियों के मंझधार से अब तुम ही एक डूबती हुई कश्ती को बाहर निकालो। एक एक करके उम्मीदों के सारे दीप बुझ गए। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के राज दुलारे, मांगने वालों को तुम्हारी चौखट से क्या नहीं मिला? अपने कदमों की धूल की एक चुटकी ही मेरे आंचल में डाल दो, ज़िंदगी भर का अरमान पूरा हो जाएगा। शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे, तुम्हें करबला के लालाजार में मुंह लपेट कर सोए हुए 1000 बरस से ऊपर गुजर गए, लेकिन आज भी तुम्हारे नाम का डंका गली गली में बज रहा है। आलम हस्ती के राजकुमार, अपनी दौलत इकबाल का एक चिराग मेरे घर में भी जला दो। तुम्हारे घर में चिरागों की कमी नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर वालों ने मेरे जज्बात के दमकते हुए अंगारों पर पानी का छींटा दिया। यहाँ तक कि काफ़ी देर के बाद रफ्ता रफ्ता मेरी हालत सुकून पजीर हुई। रोज़े की थकान तो थी ही, दिल की इस हंगामा खेज कैफियत ने सारे जिस्म को निढाल कर दिया।
बगैर कुछ खाए पिए चारपाई पे लेट गई। चंद ही लम्हे के बाद गहरी नींद आ गई। पिछले पहर एक निहायत सुहाना ख्वाब मैंने देखा। इतना याद है कि तने तनहा मैं एक मैदान में खड़ी हूँ। रात का वक्त है, अंधेरा इतना गहरा है कि हाथ को हाथ नज़र नहीं आता। इसी दरमियान में अचानक आसमान से एक सितारा टूटा और मेरी गोद में आकर गिर पड़ा। एक रोशनी चमकी और फजाओं में बिखर गई। कहीं पास ही से ये आवाज़ कान में आई, जा मायूसियों के मंझधार से तेरी कश्ती निकाल दी। सदा लगाने वालों को महरूम वापस करना हमारे घर की रीत नहीं है। तारीकियों की उम्र ख़त्म हो गई, अब जल्द तेरे घर में चिराग रोशन होगा। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। निशातो सुरूर की लज्जतों से अचानक मेरी रूह जाग उठी थी। उम्मीदों की मुरझाई हुई कलियों की ज़िंदगी का नया फ़रोग मिल गया। अभी चंद दिन भी नहीं गुजरने पाए थे कि मेरा ये ख्वाब सच होने लगा। और ठीक 9 महीने के बाद एक दिन जब इस ख्वाब की ताबीर मेरी गोद में मचलने लगी, यह वही नन्ना है जिसे पैसों में वज़न करके आज उनके नाम की खैरात लुटाई गई। सुनार की बीवी इंतहाई महवियत के आलम में ये कहानी सुन रही थी। कहानी के इख्तिताम पर उसकी आंखें बंद हो गईं। चंद ही लम्हे के बाद आंखें खुली तो पलकें भीग गई थी और मोटे मोटे अश्क के 2 कतरे आरिज पर टूट कर बह रहे थे। हैरानी के आलम में शरीफ की बीवी ने दरियाफ्त किया, हाय अल्लाह, तुम क्यों रोने लगी? क्या तुम्हें मेरी कहानी के आखिरी हिस्से से दुख पहुंचा? बस इतना पूछना था कि वो फूट पड़ी और बेअख्तियार आंखों से आंसुओं को तूफान उमड़ने लगा। शरीफ की बीवी ने जल्द जल्द आंचल के गोशे से उसके आंसुओं का सैलाब खुश्क किया और तसल्ली देते हुए रोने की वजह दरियाफ्त की। कुछ देर बाद जब उसे अफाका हुआ तो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, बहन, तुम्हें मालूम है कि हमारा सीना भी इसी निश्तर से घायल है जिसने तुम्हें बरसों से तड़पाया। हम भी मायूसियों के अथाह सागर में डूब रहे हैं। अब अपनी आरजुओं की वीरानी नहीं देखी जाती। तुम्हारी कहानी सुनकर इस अरमान में आंसू निकल आए कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के राजकुमार एक हिंदू औरत की फरियाद क्यों कर सुनेंगे। काश मैं भी उनके घर की लोंडियों की कतार में खड़ी होने के काबिल होती। इतना कहते कहते फिर उसकी पलकें नम हो गई और फरते इज़्तिराब से आवाज़ हलक में फंस के रह गई। शरीफ की बीवी ने दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत सोचो, उनके नाना जान सारे संसार के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस घर के राजकुमार फरियाद सुनने के लिए दुखियारों का धर्म नहीं देखते। जो मुसीबत का मारा भी उनकी चौखट पर खड़ा हो जाए, वो खुदा की दी हुई शक्ति से उसकी मुसीबतों की बेड़ी ज़रूर काट देते हैं। अच्छी तरह ये बात जहन नशीन कर लो कि इस्लाम का धर्म कारसाजी की रिश्वतों से नहीं फैला। उसकी सच्चाई दिल के गोशों में खुद अपनी जगह बना लेती है। ये जवाब सुनकर उम्मीदों की एक नई ताजगी से सुनार की बीवी का चेहरा खिल उठा। उसने तिनके का सहारा ढूंढने के लिए अंदाज में कहा, तो बहन, फिर हमारे लिए भी करबला की राजधानी तक फरियाद पहुंचाने का कोई रास्ता निकालो। हो सकता है हमारी गोद की वीरान महफिल उनकी कृपा से जगमगा उठे। शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई जरिया तलाश करने के बजाय खुद तुम उनका ध्यान करके अपने टूटे हुए दिल की ज़बान में उनसे फरियाद करो। तुम्हारी पुकार उनकी चौखट तक ज़रूर पहुंच जाएगी। इस तरह के मामले में असल चीज़ दिल का यकीन है और बेहतर होगा कि करबला की राजधानी तक अपना पैगाम भेजने से पहले उनके नाम पर फातिहा किए हुए शरबत के चंद घूंट पी लो। मेरे ख्याल में इसकी बरकत तुम्हारे दिल की आवाज़ में ज़रूर शामिल होगी। सुनार की बीवी ने नहायत अकीदत के साथ शरबत के चंद घूंट पीकर करबला की तरफ मुंह किया और दिल में शहजादा कौनैन के सरकार में अपना इस्तगासा पेश कर दिया। दिल की यकीन भी गमज़दों का कैसा खैर अंदेज साथी है। इसका अंदाज़ा लगाना हो तो तारीख़ आलम का मुताला कीजिए। ज़िंदगी की ऐसी बेशुमार मुहिम आपको मिलेगी जो सिर्फ यकीन के बल पर सर होती। मिसाल के तौर पर उसी सुनार की बीवी का वाक़या ले लीजिए। जब ये उठकर अपने घर वापस गई तो उसे नामालूम तौर पर उम्मीद हो गई थी कि करबला की राजधानी में पेश की हुई फरियाद रायगा नहीं जाएगी। दूसरे दिन उसने अपने शौहर से जब इसका तज़किरा किया तो वो सिर्फ अपनी लाडली बीवी की दिलदही की खातिर उसकी खुशी में शरीक हो गया। उसे कतई यकीन नहीं आया कि सिर्फ एक ख्याली बुनियाद पर नामुरादियों का वो तिलिस्म टूट जाएगा
जिसे तोड़ने के लिए उम्र भर की जद्दोजहद भी बेकार साबित हुई। उसका ज़हन किसी तरह इसे कबूल नहीं कर रहा था कि सैयद शरीफ के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पीछे किसी रूहानी तसर्रुफ़ कार फरमा है। उसका ख्याल था कि हर चीज़ के ज़हूर का एक वक्त मुय्यन होता है, जब उसका वक्त आ जाता है तो वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाती। लेकिन बीवी के दिल का हाल बिल्कुल अलग थलग था। वो हर वक्त इस यकीन के उजाले में रहती थी कि शरीफ की बीवी की कहानी गलत नहीं हो सकती। अगर उसकी उजड़ी हुई गोद की आबादी में शहीद करबला के रूहानी फैज़ान का दखल नहीं होता तो क्या इसे हज़ारों रुपए काट रहे थे जो उसने खराज अकीदत के तौर पर फ़कीरों में लुटाए थे। उम्मीदों खुश अकीदगी के इसी हजूम में उसकी ज़िंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन उसके शोहर ने उसे ऐसा सख्त ताना दिया कि उसके यकीन का आबगीना घायल होकर रह गया। उस दिन से वह बहुत उदास रहने लगी। शाख से टूट जाने वाले पत्ता की तरह उसके चेहरे की तमाम रौनकें उड़ गईं। अब शरीफ की बीवी से मिलना जुलना भी उसने कम कर दिया। अपनी ज़ूद अंदेशी पर दिल ही दिल में उसे पशेमानी का एहसास बढ़ने लगा। अब फिर उसकी उम्मीदों की दुनिया तारीक हो गई। दिल का हाल फिर उसी मकाम पर पलट आया जहाँ से 10वीं मुहर्रम को अपने सफ़र का आगाज़ किया था। इन्हीं पुरसोज और जाँ गसल मरहले से वो गुजर रही थी कि अचानक एक दिन इसे महसूस हुआ कि किसी मरकज़े तमन्ना की वो हामिल हो गई है। लेकिन फिर उसने ख्याल किया कि हो सकता है यह एहसास इसके लाशऊर की कोई मसनूई कैफियत हो। बात अभी चूँकि वहम के दर्जे में थी, इसलिए उसने इंकिशाफ किसी पर नहीं किया। लेकिन दूसरे महीने जब यकीन के आसार पूरी तरह नुमायां हो गए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। जब उसने अपने शौहर को इसकी इतला दी तो फर्ते हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बेखुदी की हालत में वो पागलों की तरह नाचने लगा। इसी वालेहाना कैफियत में उसने फिर दरियाफ्त किया, मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम गलत नहीं बोल रही हो। बीवी ने संजीदा होकर जवाब दिया, गलत वहाँ बोला जाता है जहाँ गलती छुपाई जा सकती हो, लेकिन यकीन करो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने तुम्हें झूठी खबर नहीं दी। वैसे आज नहीं तो कल मेरा सच झूठ जाहिर हो जाएगा। वक्त का इंतज़ार करो। शहर की सबसे मशहूर दाइया ने जब इसकी तस्दीक कर दी तो शोहर का मुसर्रतों का आलम काबू से बाहर हो गया। फरते नदामत से वो अपना मुंह पीटने लगा। करबला वाले शहीद, मेरी गलती माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी रूहानी शक्ति का गलत अंदाज़ा लगाया था। अपनी लाइल्मी से मैंने तुम्हारे अधिकार का अपमान किया है। दयालु महाराज, मैं अपराधी हूँ। मेरी कृपा से मुझे क्षमा कर दो। अपनी कृपा से मुझे क्षमा कर दो। उसी दिन शाम को एक अरसे बाद सुनार की बीवी शरीफ के घर गई और उनकी बीवी से सारा माजरा कह सुनाया। यह खबर सुनकर खुशी से उसकी आंखों में आंसू मढ़ आए। उसे अपने सबसे ज़्यादा मुसर्रत इस बात की हुई कि उसे अपने अकीदे की सेहत का दूसरा तजर्बा हासिल हुआ। उसने मुस्कुराहटों की जगमगाहट में सुनार की बीवी को मुबारकबाद देते हुए कहा, दिल का यकीन अपना असर लाए बगैर नहीं रहता। याद करो, मैंने तुमसे इसी दिन कह दिया था कि मुश्किल कुशाई के लिए वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, फरियादी का सोज़ो इखलास देखते हैं। दुआ है कि खुदाए करीम खैर सलामती के साथ इस आगाज़ को अंजाम तक पहुँचाए। सुनार की बीवी ने जवाब में कहा, बीबी अपनी सरगुज़श्त कहती हूँ, यकीन करो मेरा सितारा गोहन में आ गया था। वो तो खैरियत हुई कि जिस सरकार से मैंने विनती की थी उन्होंने फ़ौरन ही मुझे संभाल लिया, वरना मेरे दिल का विश्वास उठता जा रहा था। आज मैं सोचती हूँ तो शर्म से पानी पानी हो जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसी होक उठती है कि करबला की जिस भूमि पर उनका राज सिंहासन रखा हुआ है, इसे आंखों से लगाकर खूब फूट फूट कर रोऊं। बहन, आज मैंने मान लिया कि सारे जगत में इस्लाम की रूहानी शक्ति का कोई जवाब नहीं। सच पूछो तो मानने के काबिल यही धर्म है जिस पर चलकर आदमी ऐसा अमर हो जाता है कि मरने के बाद भी उसकी रूह के ज्ञान का सोता नहीं सूखता। खैर से दिन गुजर गए तो मैं भी अपने सरकार के नाम पर फ़कीरों को खैरात लुटाऊंगी। इसी दिन सारे शहर को मालूम होगा कि मेरे दिल के अंधे विश्वास में क्या जादू था। अब संसार में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है उन्हीं के चरणों में तज दिया है। आज सुबह इसे सुनार की
घर पर शहनाई बज रही थी। अंदर से लेकर बाहर तक सारा माहौल खुशी की लहरों में डूबा हुआ था। दूर दूर से रिश्तेदारों की सवारियां उतर रही थीं। दूसरी तरफ शहर के सारे फकीर हजूम लगाए खड़े थे। आज इसके यहाँ बच्ची तो पैदा हुई थी। दिल की अंजुमन में अरमानों का पहला चिराग जला था। ममता की वीरान महफिल आज पहली बार आबाद हुई थी। फकीरों को खैरात लुटाते हुए फरते मुसरत से सुनार की आंखें डबडबा आती थीं। वो बेखुदी की हालत में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, शहीद करबला का इकबाल सलामत। आज उन्हीं की कृपा से हमारा घर जगमगा रहा है। एक ऐसी मरी हुई हसरत जी उठी है जिसके लिए सारे जहान की खाक छान कर हम मायूसी के अथाह सागर में डूब गए थे। फ़कीर अपनी झोलियाँ भरकर दुआएं देते हुए वापस चले गए। एक दो रोज़ के बाद बाहर से आए हुए मेहमानों की भीड़ भी छट चुकी। बहुत से मेहमानों को सुनार और उसकी बीवी का ये अंदाज़ पसंद नहीं आया कि वो हिंदू धर्म रख कर मुसलमानों के पीर का गुण गा रहे थे। बाद औरतों से सुनार की बीवी ने झगड़ा भी किया और वो उठकर चली गई, लेकिन उसने उनके रूठने की कुछ परवाह नहीं की। छठी की रस्म से फरागत के बाद अब लाडली बच्ची की परवरिश का एहतमाम शुरू हुआ। कई मामाएँ रखी गईं। नाजो नेमत के सारे सामान फराहम कर दिए गए। बच्ची क्या थी? हुस्न व ज़िबाई के सांचे में ढली हुई एक मूरत थी जो देखता हैरान व शशदर रह जाता। सारे शहर में बिजली की तरह यह खबर मशहूर हो गई थी कि सुनार के घर में आसमान की ज़ोहरा उतर आई है। माँ बाप प्यार से उसे लाला कहते थे। आगे चलकर यही नाम सबकी ज़बानों पर चढ़ गया। लाला जब ज़रा होशियार हो गई और बातें करने लगी तो इसकी तालीम और तरबियत का निहायत माकूल और आला इंतज़ाम किया गया। इसी निखरे हुए माहौल में उसके दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि 14 साल के सन में पहुँचते पहुँचते वो इस ज़माने के रवाज के मुताबिक सारे इल्म व हुनर में यकताए रोज़गार बन गई। उसके ज़ाहिर का हुस्न दिल फरेबी क्या कम था कि अब वो मानवी जमाल से भी आरास्ता हो गई थी। शबाब की मंजिल में कदम रखने के बाद तो वो मुजस्सम साहिरा मालूम होती थी। परिजाद की तरह उसका गैर मामूली हुस्न सारे इलाके में ज़बान ज़दा हो गया था। माँ बाप बचपन से इसे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कहीं नज़र न लग जाए, और अब तो सिवाय बादे सबा के कोई उसके ख्वाबगाह के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता था। घर वालों को छोड़कर वो बाहर की औरतों से पर्दा करती थी। ऐसी बाहया और गयूर फितरत लेकर वो पैदा हुई थी कि कभी कभी आईने में अपना सरापा देखकर रो पड़ती थी। इसे हमेशा ये फिक्र दामनगीर रहा करती थी कि हवस परस्तों और बदकुमाशों की इस दुनिया में वो कहाँ अपने लिए छुपने की जगह तलाश करे। कब तक नंगी तलवारों का पहरा उसके हुस्न जहाँ ताब की हिफाजत करेगा। जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई थी वो शहीद करबला की अकीदत में हर वक्त शराबूर रहा करता था। बात बात पर उसकी माँ करबला वाले सरकार की दुहाई दिया करती थी। वैसे तो शऊर की मंजिल में कदम रखते ही उसे मालूम हो गया था कि वो करबला वाले सरकार के घर की भीख में मिली है, लेकिन अब कदम कदम पर उनकी अकीदत से हंगामा शौक ने ऐसे वारिफ्ता इश्क बना दिया था जिससे करबला ही की खाक से उसकी सरिश्त तैयार हुई हो। इसी दिलगीर ताल्लुक़ का नतीजा था कि वो साल में सिर्फ एक बार 10वीं मुहर्रम को सैयद शरीफ की मजलिस में शिरकत के लिए अपने घर से बाहर निकलती थी। करबला की दर्दंगेज सरगुज़श्त सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगती थी। मजलिस से महफ उठने के बाद भी कई दिन तक उसकी पलकों का आंसू जज्ब नहीं होता था। सब्ज़ चोड़ा पहनकर जब वो महफिल में तैयार हो जाती तो ऐसा लगता था कि किसी शादाब चमन की सारी रानाइयाँ उसके दामन में सिमट आई हैं। ख़वातीन के बज़म में पहुंचकर वो माह कामिल की तरह सब में नुमायाँ और रोशन रहती थी। जब उसकी उम्र 18 साल की हो गई तो वालदैन को इसकी शादी की फ़िक्र दामनगीर हुई। सारे इलाके में उसके हुस्न और शुबाब की क़यामतों का डंका बज रहा था। गायबाना तौर पर उसके उशाक की कमी नहीं थी। सैकड़ों दीवाने सिर्फ इस घर के दीदार के लिए आते रहते थे जो इस गैरत माहो अंजम की चांदनी का गहवारा था। बड़े बड़े राजाओं, नवाबों और जागीरदारों के पैगामात का अलग अंबार लग गया। इलाके के जागीरदार का बेटा तो हज़ार जान से उस पर शेफता था। सुबह शाम उठते बैठते उसी नाम की माला जपता था। वो बड़ा ज़िद्दी, हवस परस्त और अय्याश किस्म का नौजवान था।
कवि हैकल गुंडों का एक गिरोह उसने पाल रखा था, जो इसकी शबिस्तान ऐश को गर्म रखने के लिए आए दिन दो शेजाओं के घरों पर छापा मारते रहते थे। बड़े बड़े नाजों का पला हुआ वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। सारी रियासत में उसकी राज हट मशहूर थी। सुनार की बेटी के हुस्न जमाल का शोहरा सुनकर वो दीवाना हो गया था। उसके हासिल करने की सारी कोशिशें जब बेकार हो गईं तो उदास व मलूल चेहरा बनाए हुए वो अपनी माँ के पास आया और फैसला कुन अंदाज में कहा, जौनपुर के सुनार की बेटी से अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगा। उसकी माँ खानदानी राजपूत की बेटी थी। उसकी आन बान किसी रानी से कम नहीं थी। बेटे की ज़बान से इस तरह की बात सुनकर ललकारते हुए कहा, राजपूत होकर एक मामूली बात के लिए तुमने इतनी बड़ी कसम खा ली है। सुनार की क्या मजाल है कि वो राज दरबार के हुक्म की सरताबी करे। उसका घर फिकवा दूंगी और उसकी बेटी लौंडी बनाकर रखूंगी। तुम नाहक फिक्र करके अपनी जान मत घुलाओ। वैसे यह रिश्ता हमारी बराबरी का नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए सब कुछ किया जा सकता है। दूसरे दिन अपनी मखसूस दाई के ज़रिए उसने रिश्ते का पैगाम सुनार के घर भेजा। सुनार की बीवी ने पैगाम सुनकर जवाब दिया, और भी बहुत से पैगाम आए हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। राजमाता से कह देना कि वक्त आने पर देखा जाएगा। जागीरदार की बीवी यह जवाब सुनकर गुस्से से सुर्ख हो गई। पेचोताब खाते हुए दिल ही दिल में कहा, देखना है वो आसमानी हूर की शादी कहाँ करती है। दुल्हन की सजी सजाई डोली दरवाजे पर न मंगवाऊं तो मैं राजपूत की बेटी नहीं। एक दिन लाला की माँ ने बेटी का रुख मालूम करने के लिए यह जिक्र छेड़ दिया, बेटी, ज़माना का ये दस्तूर हमेशा से चला आ रहा है कि लड़कियां जब सियानी हो जाती हैं तो उन्हें पराया घर आबाद करना पड़ता है। बहुत से पैगामात आ रहे हैं, इजाज़त दो तो तुम्हारे हाथ पीले करने का इंतज़ाम किया जाए। लाला ने शर्म से मुंह ढांप लिया और लजाई हुई आवाज़ में कहा, मुझे तुम पराए घर भेजना चाहती हो तो मेरा बर ऐसी जगह तलाश करना जो इतना पारसा हो कि उसने किसी गैर औरत को बुरी नज़र से भी ना देखा हो। बेटी के मजाज और उसकी रूह की नफाजत से घर वाले बखूबी वाकिफ थे। कदो कामत और सूरत व शक्ल ही नहीं, उसके खसाइल व आदात भी आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसके ज़ौक़ व तबीयत का पैमाना ही सबसे जुदागाना था। ना उसकी सही कोई सहेली थी, न दिल बहलाने के लिए उसके कोई खेल खेला। दुनिया की आम रविश से हट कर वो एक तन्हा और मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी की खूगर बन गई थी। उसका ख्याल मालूम करने के बाद आए हुए सारे पैगामात मुस्तरद कर दिए गए। उनमें से कोई भी बेटी के पसंद करदा मेयार पर पूरा नहीं उतरता था। काफ़ी अरसा के बाद एक दिन सुनार की बीवी सैयद शरीफ के घर गई। दौरान गुफ्तगू लाला के रिश्ते की बात निकल आई। सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, सुना था कि लाला के लिए बहुत से पैगामात आए, उनके मुतल्लक क्या फ़ैसला किया? ज़्यादा देर इंतज़ार मत करो, कोई मुनासिब रिश्ता देख कर बच्ची के हाथ पीले कर दो। जवान बेटी सर पे बोझ बनी रहती है। सुनार की बीवी ने उदास लहजे में जवाब दिया, बहन क्या बताऊं, हम लोग भी उसके रिश्ते के लिए बहुत परेशान हैं। जितने भी पैगामात आए थे वो सब वापस कर दिए। दरमियान में बात काटते हुए सैयद साहब की बीवी ने दरियाफ्त किया, क्या इनमें कोई रिश्ता भी काबिल कबूल नहीं था? सुनार की बीवी ने मादरत खा लहजे में जवाब दिया, बहुत से रिश्ते ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ घरानों से आए थे। कुछ रिश्ते राजाओं जागीरदारों के भी थे, लेकिन लाला ने एक ऐसी शर्त लगा दी है कि उन्हें वापस करना पड़ा। बहन, तुम्हें भी इससे इनकार नहीं होगा कि ये सौदा ज़बरदस्ती का नहीं है। बच्ची की मर्ज़ी के खिलाफ कोई रिश्ता उसके सर पर मुसल्लत करते हुए डर लगता है। वो बेछुई हुई शाख की एक नाजुक कली है, कहीं मुरझा गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बच्ची का कहना है कि मेरा बर ऐसी जगह तलाश करो जो ऐसा पारसा हो कि उसने किस गैर औरत को बुरी निगाह से भी ना देखा हो। कई महीने से लाला के बाबूजी ऐसे बर की तलाश में नगर नगर की खाक छानते फिर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा। तहकीक करने पर कोई न कोई खामी ज़रूर निकल आती है। हम अपनी लाला के साथ धोखा नहीं करेंगे। जब तक ऐसा बर नहीं मिल जाएगा हम हाथ नहीं डालेंगे। सारा किस्सा सुनने के बाद सैयद शरीफ की बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी लाला जिस घर की खैरात में मिली है उसकी दीवारों का साया तो उस पर पड़ना ही चाहिए। बुरा ना मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी और तरफ जा रही है। उसकी राह में हायल होना ठीक नहीं है। सुनार की बीवी ने चौंक कर दरियाफ्त किया,
بہن، تمہاری بات کا مطلب میں سمجھ نہیں سکی۔ کیا نصیب دشمنا میری لالا کے دن خراب آنے والے؟ سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی منحوس بات اپنی زبان سے نکال رہی ہو۔ تمہاری لالا پر پاک روحوں کا سایہ ہے، کبھی اس کے خراب دن نہیں آ سکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس زندگی کی باغ دوڑ کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سنار کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کی نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو لچھمی! بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق بر مل گیا۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا ایک گاؤں ہے، وہیں برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن سے ایک پہنچے ہوئے فقیر کی صحبت میں رہا ہے۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر پر بیٹھے بیٹھے گزر بسر کے لائق کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بہت ہی نیک، پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی یہ تفصیل معلوم کر کے باغ باغ ہو گئی۔ اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے، مالک کا نام لے کر کل شبھ گھڑی میں منگنی کی رسم ادا کرائیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ دوسرے دن سنار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کی جملہ رسومات کا خرچ بھی سنار ہی نے اپنے ذمہ لے لی۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اچنبھے میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ آج سنار کے گھر میں مسرت و نشاط کی بہار آ گئی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کے شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کے ہجوم میں آج لالا دلہن بنی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے ابٹن نے اسے آب زر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشراتاؤں نے جب اسے بنا سنوار کر حجلہ عروسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کے رہ گئیں۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس ماہ روشن کی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔ فرتے حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم سوئی ہوئی قیامت کا صحیح نمونہ تھا، اور شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زار کی پری اتر آئی۔ آج حسن و شباب کے عروج اس نقطۂ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں مہلکائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جو اس زہرا جمال کا شورۂ حسن سن کر صرف ایک جھلک دیکھنے کا اشتیاق لے کر آئی تھی۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جو ہی بارات دروازے پر پہنچی، دولہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دولہا کی آرتی اتاری، اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر اسے بٹھا دیا گیا۔ رات ڈھل گئی تو شہر کے سب سے بڑے پنڈت نے چند اشلوک پڑھ کر دولہا اور دلہن کے درمیان
ब्याह का रिश्ता जोड़ दिया। कहते हैं कि आरसी दर्शन के वक्त का मंजर बड़ा ही रोमान अंगेज। पहली मर्तबा आईने के अंदर दूल्हा ने एक जोहरा जमाल दोशीज़ा और पारसा दुल्हन के चेहरे का अक्स देखा था। दोनों ही अपनी जगह पर हुस्न ज़ेबाई के तीरों तरकश से मुसल्लह थे। दोनों में से किसी का वार खाली नहीं गया। एक दूसरे के निश्तर से दोनों घायल होकर रह गए। दिलों के नाजुक आपगीने नज़र की चोट संभाल नहीं सके। शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई और आंखें बंद हो गई। दूसरे दिन दोपहर ढल जाने के बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हो गई। दुल्हन की पालकी दरवाजे पर लगा दी गई। जिस लाडली बेटी को 20 साल तक पलकों के साए में पाला था, आज उसे जुदा करते हुए माँ का कलेजा फटा जा रहा था। रुखसत की घड़ी क़यामत से कम नहीं थी। बाप को गशी पर गशी आ रही थी। माँ शिद्दते कर्ब से पागल हो गई थी। सैयद शरीफ की बीवी लाला को अपने बाजुओं की गिरफ्त में दरवाजे तक ले गई। सर पे हाथ रखकर करबला वाले सरकार की दुहाई दी और पालकी में सवार कर दिया। आह नाला और गिरिया बका के शोर में लाला पराए घर के लिए रुखसत हो गई। कुहारों ने दुल्हन की पालकी उठाई। दूल्हा की सवारी आगे बढ़ गई। जब से एक गरीब सुनार के साथ लाला की शादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जागीरदार की राजपूतनी बीवी गैज़ो हसद की आग में जल उठी थी। आज आतिशे इंतकाम के भड़कने का दिन था। सुबह ही से उसके हर कारे मिनट मिनट की खबर दे रहे थे। ऐन दोपहर के वक्त एक मुखबर ने आकर इत्तला दी कि खबर मिली है कि सूरज ढलने के बाद दुल्हन रुखसत कर दी जाएगी। ये खबर सुनते ही राजपूतनी का चेहरा तमतमा उठा। तेवरी चढ़ाकर उसने अपने जवान बेटे से कहा, तेरी रगों में राजपूत का सच्चा खून है तो आज सूरज डूबने से पहले सुनार की बेटी की पालकी राजमहल के दरवाजे पर लग जाए। कमान से निकला हुआ तीर वापस हो सकता है, लेकिन राजपूत की कसम वापस नहीं हो सकती। बेटे ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया, किसी तरह की चिंता मत करो माँ, सारा इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया है। नूरुद्दीनपुर के रास्ते में जो घना जंगल पड़ता है, वहाँ हथियारों से मुसल्लह होकर हमारे सिपाही पहुँच गए हैं। मैं भी चंद सिपाहियों के साथ वहीं जा रहा हूँ। इंतज़ार करो, शाम होते होते पालकी राजमहल के दरवाजे पर लग जाएगी। नूरुद्दीनपुर से मील भर के फासले पर एक घना जंगल पड़ता था, जिसकी लंबाई 8 मील और अर्ज 3 मील का था। सूरज की टिकिया तेज़ी से उफ़क़ की तरफ ढल रही थी। कुहार दूल्हा और दुल्हन की पालकियां लिए हुए इतने तेज़ कदमों से चल रहे थे कि बाराती पीछे रह गए। जो ही बीच जंगल में पहुंचे, करीब इसे घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी और पलक झपकते नंगी तलवारें चमकाते हुए 10-15 कड़ियल जवानों ने पालकियों को घेर लिया। कुहार अपनी जान के खौफ से बेतहाशा पालकी छोड़कर भाग गए। सुनसान जंगल में 2 नन्ही जानों का अब कोई मुहाफ़िज नहीं रह गया था। जागीरदार का बेटा शराब में बदमस्त था। करीब आकर अपने साथियों को ललकारते हुए कहा, इन दोनों पालकियों को उठाकर फौरन घने जंगल में ले चलो। आम राह गुजर पर रुकना ठीक नहीं है। वहीं दूल्हा का काम तमाम करके नई नवेली दुल्हन के साथ पहली रात की मुलाकात की जाएगी। अचानक एक गैर मुतवक्का हादसे से लाला पर सकते की कैफियत तारी हो गई। दिमाग माऊफ होकर रह गया था। होश जवाब दे चुके थे। ये खौफनाक आवाज़ सुनते ही लाला का खून सूख गया था। सबसे ज़्यादा नामूस की फिक्र थी। जान के लाले अलग पड़े हुए थे। दूल्हा अपनी पालकी से जस्त लगाना चाहता था कि 2 सिपाहियों ने उसे रस्सी से जकड़ कर बांध दिया और निहायत सुरत के साथ दोनों पालकियों को उठाकर जंगल के अंदर ले चले और बीच जंगल में पहुंचकर घनी झाड़ियों के दरमियान उन्हें रख दिया। उसके बाद रस्सी में जकड़े हुए दूल्हा को पालकी से बाहर निकाला और उसे कत्ल करने के लिए 2 सिपाही तलवार लेकर खड़े हो गए। तलवार उठाना ही चाहते थे कि लाला उस मंजर की ताब ना ला सके। वहशत इज़्तिराब में पालकी से बाहर निकल आई और एक मजलूम फरियादी के लहजे में कहा, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने पति का खून नहीं देख सकूंगी। लाला के चेहरे पर नज़र पड़ते ही हैबत जमाल से कातलों पर सख्ता तारी हो गया। हाथ लरज गए और तलवार छूट कर गिर पड़ी। इतने में जागीरदार का बेटा नशे की हालत में लाला के करीब पहुंच गया और खुशी से झूमते हुए कहा, अब इस वक्त से तुम्हारा पति मैं हूँ। भूल जाओ अपने इस पति को।
جس نے میری راہ میں حائل ہو کر اپنا خون حلال کر لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لالا کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا، بے ساختہ لالا کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، یا حسین میری لجا کو بچاؤ۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تلملا اٹھا اور دانت پیستے ہوئے کہا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمانوں کے دیوتا کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے اور تیرے پتی کو میرے ہاتھ سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سپاہیوں کو للکارا، اب دیکھتے کیا ہو، تلوار اٹھا کر اس کے پتی کے 2 ٹکڑے کر دو اور اس ادھرمی لڑکی کو شکنجے میں کس کر گھوڑے پر باندھ دو۔ اب پالکی پر لاد کر لے جانے کا وقت نہیں ہے، ماں کو وچن دے چکا ہوں کہ سورج است ہونے سے پہلے پہلے راج محل کے دروازے پر سنار کی بیٹی پہنچ جائے گی۔ اس کی آواز پر سپاہی سنبھل کر کھڑے ہو گئے اور زمین پر گری ہوئی تلوار کو دوبارہ اٹھا لیا۔ ادھر 2 سپاہی رسیوں کا شکنجہ لے کر لالا کے قریب پہنچ گئے۔ امیدوں کا چراغ گل ہونے میں اب صرف پلک جھپکنے کی دیر تھی۔ لالا کا دل ڈوبتا جا رہا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، شکنجوں میں کسنے والے ہاتھ لالا کے جسم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امیدوں کے خون کے ساتھ انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی تھی اور اب کربلا والے سرکار کی غیبی امداد کے یقین کا آبگینہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بجلی کوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی دھمک سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے شوہر کی گرہیں کھل چکی تھی اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبہ عقیدت کی بے خودی میں لالا اور اس کے شوہر کی پیشانیاں حسین کے خدا کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بے ساختہ زمین پر جھک گئی۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی ہوئی تلوار سے ہی کافر نہیں قتل ہوئے، لالا اور اس کے شوہر کا آبائی کفر بھی قتل ہو کے رہ گیا تھا۔ اب ان کے سینے میں ایک مومن کا دل جگمگا رہا تھا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کوہاروں نے نور الدین پور پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی سارے گاؤں میں کوہرام برپا ہو گیا، بجلی کی طرح سارے علاقے میں اس واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا وہیں سے جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سنار اور اس کی بیوی کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو وہ شدت کرب سے پاگل ہو گئے اور کلیجہ پیٹتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لالا کی ساس بھی بین کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ دم کے دم ہزاروں افراد کا میلہ لگ گیا تھا۔ ہر شخص اس واقعہ کے اضطراب سے بے چین تھا۔ سید شریف کی بیوی افتاں و خیزاں وہاں پہنچ گئی تھی۔ پالکیوں کی تلاش میں لوگ مشعل لے کر جنگل کے اندر گھس گئے۔ کافی مسافت طے کر لینے کے بعد ایک جگہ جھاڑیوں کے جھنڈ میں انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہاں پہنچے تو سب پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ پالکیاں خالی پڑی ہوئی تھیں، جھلسے ہوئے چہروں کے ساتھ زمین پر لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ رسیوں کی کمند الگ پڑی ہوئی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان میں خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ چند ہی قدم کے فاصلے پر سید شریف کو سرخ پیراہن کی ایک جھلک نظر آئی۔ مشعل لے کر آگے بڑھی تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن زمین پر ماتھا ٹیکے ہوئے سجدہ کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ وفور حیرت منہ سے چیخ نکل پڑی، دلہا دلہن مل گئے، دلہا دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ بے تحاشا دوڑ پڑے۔ نبض دیکھی تو چل رہی تھی، نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ سنار، اس کی بیوی اور دلہا کی ماں جوڑے کو سلامت پا کر خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ طلسم ہوش ربا کی طرح یہ واقعہ پر اسرار ہو گیا تھا۔ حیرت کی گرہ کھولنے کے لیے ظاہری اسباب کی کوئی کڑی مل نہیں رہی تھی۔ ہوش آنے کے بعد بھی دولہا اور دلہن سکتے کے عالم میں تھے۔ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً ہی انہیں پالکی پر لاد کر جون پور لایا گیا۔ رات بیت چکی تھی لیکن کئی ہزار آدمیوں کا ہجوم سنار کے دروازے پر ٹھٹ باندھ کھڑا تھا۔ وہ دلہا اور دلہن کی زبان سے واقعہ کی حیرت انگیز تفصیل معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اپنی مانوس پناہ گاہ میں پہنچ کر لالا اب پوری طرح ہوش میں تھی۔ دلہا بھی سکتے کی حالت سے باہر نکل آیا تھا۔ ماں سے برداشت نہیں ہو سکا تو اس نے لالا سے دریافت کیا، بیٹی کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ تو سنا دو، عقل کام نہیں کر رہی، دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ لالا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سارا واقعہ سنایا۔
سرگزشت کا آخری حصہ بیان کرتے ہوئے رقت انگیز جذبات کے تلاطم میں ڈوب گئی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل سکے۔ کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی برقاسا ایک تلوار چمکی، ایک بجلی کوندی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا معلوم نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آنکھوں کے پٹ کھلے تو اتنا دیکھا کہ زمین پر بے جان لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ سجدہ شکر کے لیے زمین پر گر پڑے۔ کہانی یہاں تک پہنچ پائی تھی کہ جذبات میں ایک ہیجان برپا ہو گیا تھا۔ حسین کے نعروں سے سارے گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ بے خودی کی کیف میں لالا کی ماں کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخ پڑی، یا حسین، تم سچے، تمہارا دھرم سچا، اور تمہارے جس نانا جان نے تمہاری آتما کو اتھاہ شکتی بخشی ہے وہ سچے۔ حسین، تم گواہ رہنا کہ آج سے میں نے تمہارے نانا جان کا دھرم قبول کیا۔ آج ایمان و اسلام کی سچائی کا آفتاب سوا نیزے پہ چمک رہا تھا۔ واقعات کے راویوں کا کہنا ہے کہ اس دن دلہا اور دلہن کے متعلقین کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکتوں سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ منکرین نے بھی مان لیا کہ خاصان خدا کی غیبی چارہ گری کا عقیدہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ دل اگر بے چینی کے آزار میں نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ دل ہی ڈبوئے، دل ہی ترائے، دل دوست نہ دل سا دشمن۔